हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो तुम मेरे दोस्तों। सो दिस इज योर शेफ प्रकाश. So guys, today I'm going to show you how to make Hakka noodles in Kolkata style. And what is the basic difference between why you call the Hakka noodle, why it comes from name Hakka noodles. So guys, Hakka noodle की बात जब आती है तो Hakka means it's a group of people come from other side, other community and other places, and they assemble, you know. So like before in Kolkata, so people come from China and they started making Hakka. So it's called like a Hakka. So the name come from Hakka is from them. So what local spices they get in bazaar market, they used to make like local spices and all, and they mix with the Hakka noodles and spices like that. So guys, that is my basic. So today I am going to show you how to cut the vegetables and what are the ingredients we need for the Hakka noodle, right? And कोलकाता का स्पाइसेस नूडल जो स्पाइसी होती है ना दोस्त, तो वो जो होती है वो एकदम कोलकाता का हक्का नूडल जो खाए दुनिया में सब जगह मतलब. So guys, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा हाउ टू चॉप द वेजिटेबल्स जुलियंस and some garlics and all that. Vegetables I have ready here, as you can see. Cabbage whole, then green chili, green beans, carrot, and it's a white part of the spring onion. So guys, I'm going to show you how to cut this one little by little, okay? So guys, please continue with this. So this is pepperoni guys, okay? So what you do is, when you start cutting, you have to put one chopping board, you put one cloth, okay? Then you arrange your chopping board. And this is my nice knife, so I have to cut like this, julienne. This is called julienne guys. So as you can see how it's come like. So guys, now I have to show you the trick of the how to cut the Chinese carrots and how they arrange and they make it cut, okay? So now you have to do like this. And now as you can see this, I have to just slice it, but I have to arrange this one like this, okay? So it's easy to cut in the julienne. So guys, you see how it's cut like this. Not even one slice out, okay? So guys, either like this. So this cut is called in our terms is julienne. So one more piece is left, so I can cut it. तो हक्का नूडल के लिए जो होती है ना दोस्तों, तो थोड़ी सी मोटी होना चाहिए, उतना भी फाइन जुलियन नहीं चाहिए हमें. तो गाइस कैरेट और कैप्सिकम कट चुका है. तो अभी गाइस हम लोग केबेज मैं इधर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का लिया हूँ, क्योंकि मुझे केबेज की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी. राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्पीड से. तो व्हेन यू कट योरसेल्फ, डोंट यूज knife. If you are not a professional, don't use like this cut. You be careful when you cut, okay? So guys, you take out this one white part of the cabbage, and this one you have to just press a little bit, and then you can cut. Wow, so this is our cabbage. I cut, but I like when I work
I like my working surface has to be clean always, and you also. So we are not wasting the white part also cabbage, and we are doing it right guys. आज थोड़ा कैबेज की जो ज़रूरत ज़्यादा है हमें हाका नूडल्स के लिए. तो नाउ इस कम्स द फ्रेंच बीन्स. अगर ग्रीन बीन्स अवेलेबल तो ग्रीन बीन ले लीजिए, फ्रेंच बीन होगा तो फ्रेंच बीन ले लीजिए, है ना. सो गाइस इट्स रेडी टू गो. तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से हमें कटनी होती है. बट अगर आपके हाथ में स्पीड है तो आप एक कोशिश करें, वरना आपके हाथ भी कट सकती है. सो आई डोंट वांट यू टू बी लाइक दैट. आप घर में हैं तो आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो गाइस देख रहे हैं हम लोग बीन्स भी किस तरह से कट रही हैं, और मैंने आपसे बातें भी कर रहा हूँ गाइस. तो देखिए किस तरह से खिले हुए हैं गाइस. मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट द कुकिंग. अरे गाइस 2 बीन्स अभी भी बचे हुए हैं तो मैं उसको भी काट लेता हूँ. राइट नाउ तो स्प्रिंग ओनियन के बारे में आपको कुछ बताऊंगा. इट्स अ ग्रीन पार्ट ऑफ द स्प्रिंग ओनियन, राइट. बट वी कैन से इज scallion as well. In other European countries they call it scallions as well. Okay, so guys this is whiter part of the scallion. So I am going to, because I need this white onion is a good, it gives very nice flavors to the hakka noodles, right. So I am julienne it. See how fresh it looks. आप भी घर में कभी बनाओ ना ऐसे फ्रेश लुक. तो इसको भी हमने काट लिए. तो इसको हमने अरेंज करना है और बस इस तरह से काट लेते हैं. आप इसको चाहें तो स्लैंट करके काट सकते हैं. चाइनीज़ में ज़्यादातर यूज होती है स्लैंट कटिंग. कटिंग बहुत मायने रखती है चाइनीज़ में भी. और जो कट होती है ना ब्रुनाइस, वो कॉन्टिनेंटल में बहुत सारी चलती है. तो आपको मैं कॉन्टिनेंटल की डिश भी आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, अगर आप लोग परमिशन दे तो. गाइस प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको कुछ हद तक अच्छे लगे तो ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ. घर में भी ट्राई कीजिएगा. अगर आपको मनपसंद का कुछ हुई तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं. तो इसमें क्या होती है कि हम लोग को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है गाइस. तो अभी ये ग्रीन चिली है. ग्रीन चिली को हम लोग उसको स्लाइड कर लेते हैं. तो हक्का नूडल में ज़्यादातर हम लोग जिंजर यूज़ नहीं करते हैं, तो गार्लिक का फ्लेक्स लेते हैं. ठीक है गाइस. तो ये हो गया ग्रीन चिली. सो ये हम लोग की कटिंग रेडी हो गई है. बस आप देख सकते हैं 10 मिनट में मैंने ये सब रेडी कर लिया हूँ. तो कितनी खूबसूरत लग रही है देखिए. तो हमारे नूडल भी तैयार हैं. तो इसको बॉईल करना, तो मेरी अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बॉईल करते हैं नूडल्स को. एनी काइंड ऑफ पास्ता यू व्हेन यू बॉइलिंग और ब्लांचिंग. सो नूडल्स हम लोग के रेडी है. तो हमने अभी उबलता हुआ पानी में डाल देना है.
So guys, you can see how I'm making the noodle. It's a little tricky part. It's better when how to check. People like my friends and all, they ask me how you know is it done or not noodles. So for me, as a chef, of course, it's only by touching and feelings. You know guys, see, you can only understand when it's cooked is by touching, is feeling. Right guys? तो ये उबलता पानी में आपको डालना है, और जब डालोगे आप तो सॉल्ट डालना जरूर मत भूलिएगा. जब सॉल्ट डालते हैं तो इमीडिएटली आपको नूडल्स को ऐड करना है ना. तो गाइस अभी थोड़ी देर 5 मिनट में मेरे ख्याल से ये रेडी हो जाएंगे. तो बीच बीच में आपको स्टेयर करना है इसे, ये ना भूलें आप. अगर आप पानी ज़्यादा नहीं दोगे तो नूडल्स का क्या होता है, स्ट्रेची होती है, बहुत भरपूर कार्बोहाइड्रेट है ना. तो जब आप ये करते हैं नूडल्स को, तो ख्याल रखने का ये है कि प्लेंटी ऑफ वाटर, 10 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर, डिपेंड्स ऑन योर अमाउंट ऑफ नूडल्स. राइट गाइस? सो अभी देख सकते हैं आप, इसको आप बेस्ट पार्ट है कि मुंह में दबाइए, या तो हाथ में भी आप देख के कर सकते हैं. जैसे कि पास्ता में हम चेक करते हैं तो उसको इस कॉल्ड अल्दांते इन पास्ता, नॉट इन नूडल्स. ओके, तो इसको हम लोग ऐसे करके देखते हैं, इस लाइक 70% कुक, सो इट्स रेडी टू गो. तो इसको भी हम लोग अल्दांते प्रोसीजर में कुक करेंगे, क्योंकि उसके बाद में फिर हमने उसको सौते करना है वेजिटेबल के साथ में. तो गाइस ये देखिए, ये कितनी अच्छी कलकत्ता का नूडल्स है. ये खास करके हमने मंगवाई है कलकत्ता से, और पीपल आर रियली लव दिस. कलकत्ता का जो है ना, जो यम्मी नूडल्स, स्ट्रीट फूड की जो है टेस्ट, बट रेस्टोरेंट स्टाइल के तो लोगों खाते रहते हैं, बट स्ट्रीट फूड भी बहुत याद आती है ना. तो बात वही हो गई. तो गाइस देखें कितने अच्छी तरह से ये उबल रही हैं. तो दिस इज द टाइम टू स्विच ऑफ योर स्टोव. Right guys? Enough. 5 minutes I think is the boiling water is enough for noodles. Right guys, now I am turning up the stove. So guys, अभी मैंने अपना स्ट्रेनर रेडी है. तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम स्ट्रेन करेंगे नूडल्स को, तो उसके बाद में हम लोग कोल्ड वाटर डालना ना भूलें. राइट सर? सो लेट्स गो. सो हियर वी गो. दिस इज आवर किचन क्लॉथ एंड आई एम गोइंग टू स्ट्रेन दिस आउट. So guys, as you can see, मेन रीजन है गाइस, इसका स्क्रैच को हम लोग आउट करना है. देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से की हुई है. तो हमें इसे करना कुछ नहीं है, बस इसको फर्स्ट स्टैंड में रख दीजिए. हमारी जो ये इंग्रेडिएंट्स है हक्का नूडल्स के लिए, तो ये पूरी तरह से रेडी है. हमने कट करके आपको दिखाई. सो हक्का नूडल के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग की जो कटी हुई है सब बारीकी से जूलियन कटा हुआ है. तो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये कैप्सिकम हम लोग की रेडी है, जूलियन कटी हुई. कैबेज हम लोग की इधर रेडी है. तो ग्रीन बीन्स देख सकते हैं आप किस तरह से स्लैंट कटा हुआ है. ग्रीन चिली कटी हुई है स्लैंट में. कैरेट जो कि कलरफुल है, और जूलियन कटी हुई है. स्प्रिंग ओनियन भी इधर रेडी है.
एंड सम गार्लिक फ्लेक्स। ये गार्लिक आप देख सकते हैं, वो भी कटी हुई है। वाइट पार्ट ऑफ स्प्रिंग ओनियन इस रेडी टू गो है। सो गाइस, इधर हम लोग की नूडल्स भी रेडी है। तो बॉईल किया हुआ नूडल्स आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लगी है। तो इसमें आप थोड़े से ऑयल मिलाने मत भूलिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेच है तो एक दूसरे से चिपके नहीं। राइट गाइस, सो नेक्स्ट स्टेप में हम ले चलते हैं आपको हाउ टू मेक द नूडल्स। तो दोस्तों, ये सोया सॉस रेडी है हमारे। तो सोया सॉस हम लोग को डाल देना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो ग्रीन, जो आप पूछते हैं ना मुझे ग्रीन कैसी होती है, तो आपके पास में अगर ग्रीन चिली का सॉस है या तो मार्केट में अवेलेबल होती है, तो आप 1 स्पून ग्रीन चिली की सॉस डाल दें। तो उसकी नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, तो मैं जब थोड़ा सा स्पाइसी खाता हूँ तो मैं ये जो ब्लैक पेपर मुझे बहुत पसंद है, प्लस ये बहुत नूडल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखिए मैंने डाल दी है। तो गाइस, ये हो गया आमचूर। थोड़ा सी खट्टी मिट्टी का टेस्ट हो जाता है, तो आमचूर भी मैंने डाल दिया है। और ये है चाट मसाला। तो चाट मसाला जो स्ट्रीट फूड में रहते हैं ना, वो नूडल्स को बड़ा बेहतरीन बना देते हैं। तो ये भी मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा देर के लिए आप इसको स्प्रेड कर लें। तो मैंने आपको जो बोला हुआ था, ये जो कैबेज है ना दोस्तों, ये कैबेज को आप डाल दें। तो ये क्यों डालते हैं पहले, इसका भी कोई रीज़न है। तो गाइस, इसको ये डालते हैं कि जो आपकी दूसरी नूडल्स वगैरह जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो ये वाली सबको कंबाइन कर लेगी कैबेज। और ज़रूर आप थोड़ा सा गरम मसाला डालें। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लग रही है अभी। जो दोस्तों सोया सॉस की थोड़ी सी बैलेंस सॉस थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा पानी के साथ डाइल्यूट करके इसमें मिला दिया हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा सा रेड पेस्ट आप घर में भी बना सकते हैं, ऐसे मार्केट में भी अवेलेबल होता है। तो 2 स्पून आप डाल सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से, स्पाइसी लगे तो आपको। राइट दोस्तों, तो जब तक ये क्रंची हो जाएगा, तो हमने जो वेजिटेबल पहले से मिला के रखा हुआ है, तो उसे पानी दे के रख दिए ताकि अच्छे से क्रंची रहे। तो मिला लिया हूँ सब सब्जी को मैंने। तो अभी इसमें डाल देते हैं। वाह, क्या यम्मी लग रही है ना दोस्तों। आप अगर इसको थोड़ा सा क्रंची चाहते हैं तो क्रंची रखना ज़रूर। अभी हम इसमें डाल देंगे हम लोग की सॉल्ट। तो सॉल्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी हमने नूडल्स में भी डाली हुई है। अगर थोड़ा सा स्पाइसी आपको पसंद है, स्ट्रीट फूड का जो खाना का टेस्ट मांगता है, तो थोड़ा सा स्पाइसी आप कर सकते हैं।
तो गाइस देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत चीज़ लगी हुई है। वाह। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि इसको आपको जो चाइनीज़ के जो पैन होते हैं ना, यॉक बोलते हैं, वक वक चाइनीज़ कढ़ाई जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो बहुत बेहतरीन होती है। तो घर में आप जब बना रहे हैं तो इसमें आप कोशिश कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया हो। तो थोड़ा देर इसको कुक होने दीजिए। तो आप जो मुझे पूछते रहते हैं ना, तो एक कलर कैसे आते हैं, तो ग्रीन की, तो इसको या तो ग्रीनिश होती है, वो रेड जो आपने ग्रीन चिली की सॉस जो लगा दिए हैं तो उसके वजह से, और कैबेज के वजह से। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक देता हूँ, तो उससे बहुत बढ़िया कलर भी आती है, ऑरेंज कलर। आज यू कैन सी हाउ इट्स लुक लाइक। द वेजिटेबल आर क्रंची, so we don't have to do nothing now. Only we have to do the last thing is to add the noodles. In the meantime we have to make sure the vegetable has to be crunchy. right दोस्तों। तो इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी खट्टी मीठी स्पाइसी। आप चाहें तो थोड़ा सा टमाटो केचप भी डाल सकते हैं इधर। तो गाइस मैं थोड़ा सा टमाटो स्टॉक 1 स्पून लेग डाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन हो गई है हम लोग के वेजिटेबल। नाउ गाइस इट्स टाइम टू ऐड द नूडल्स। वाओ, हक्का नूडल तो इसी का नाम है। तो गैस हम लोग ने इसमें नूडल्स डालना चालू कर रहे हैं। तो इसको मिलाने का जो तरीका है ना गाइस, तो उसे आप देखिए मैं किस तरह से मिला रहा हूँ। तो कितनी सुंदर से कलर आपको नीचे से दे। तो वेजिटेबल को हम लोग को निकालना है, ऊपर से नीचे करना है। आप चाहे तो 2 फोक से भी कर सकते हैं, पर मैं मिलाने के बाद में जो कलर आती है ना दोस्तों, देखिए कैसे पिंकिश कलर, ऑरेंज कलर की से, और चाहे तो आप ग्रीन कलर भी इसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो गाइस मैं प्रीफर करूँगा अभी 2 स्पून के सहारे से। देखिए ये दोनों फोक आप लेके इसको कर सकते हैं। वाओ, सो गाइस ये कोलकाता की हाका नूडल स्ट्रीट की टेस्ट आप अगर पुणे में दुनिया में कहीं खोजोगे, और आपको कहीं पे भी दुनिया में हो, अगर आप चाहोगे तो गाइस इस तरह से आप कोशिश करें बनाना, तो घर में बन सकती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो हमारा ये नूडल्स देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है। तो ये हमारे पूरी तरह से रेडी है ना गाइस। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका अभी हम लोग स्टोव को स्विच ऑफ कर देते हैं, है ना। तो खाना बनाने में तो मेहनत तो है ही है,
और उसके लिए पेशेंस तो ज़रूरी है। तो गैस लेकिन उसकी खूबसूरती बात वही होती है, जब हम बना लेते हैं तो उसको प्लेटिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। सो गैस अभी हम लोग इसको प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेटिंग करना, ये देखिए आप इस तरह से ले नूडल्स। अब इसको ऐसे करें, लगती है ना दोस्तों होटल में खा रहे हैं आप, पिरामिड के जैसे बनी हुई है नूडल्स दोस्त। वाह। तो इसमें आज कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियन डालना है उसके ऊपर, प्याज के पत्ते। तो गैस लगती है ना यम्मी। सो गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे, जो हक्का नूडल की रेसिपी मैंने जो आपके साथ शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू push the bell button and like one is enough for me, and if you don't like just put dislike, right guys? And don't forget to put some comments if I have mistake. Everybody has mistake, you know, when they make videos and all, they make mistake, guys. So it's ready. See you, and thanks for watching me. I will come up with a new next video. Till then, good night, sabak hai.